Ever wondered how much safer your work at height operations could be? Imagine a world where every potential hazard is detected before it becomes a problem. Meet Tracker AI's smart PTZ camera system. This isn't just any camera, it's a game changer in work at height safety. Safety is paramount, right? It's the foundation of a productive and happy workforce. Despite stringent regulations, accidents still happen. Traditional methods often fall short in preventing these incidents. Enter Tracker AI's Smart PTZ. This advanced system is designed to fill the gaps left by outdated safety measures. Tracker Smart PTZ cameras deliver unmatched oversight so you can spot hazards before they become accidents. Offering 24/7 monitoring, it detects work at height safety hazards instantly, no matter the time of day or night. Think about it. Real-time monitoring, automated alerts and even fall detection. It's like having a safety manager who never blinks. Real-time alerts trigger immediate action, ensuring that potential dangers are addressed before they escalate. Automated surveillance significantly reduces human error, making your work site safer and more efficient. It even detects PPE and welding work compliance, ensuring that all workers are properly equipped. Ensure every worker goes home safe. That's the ultimate goal, isn't it? Ready to elevate safety? Stay safe, stay smart. With Tracker AI, you're not just upgrading your equipment, you're upgrading your entire safety culture. The Tracker Smart PTZ camera features advanced AI algorithms that are constantly learning and adapting to new safety challenges. With 360-degree rotation and high-definition video, it covers every angle, leaving no blind spots. You can decide which areas to cover, what to detect in each area through a simple online procedure without ever leaving your seat. Through the setup, you can monitor what is happening on the ground in real time remotely. In a recent case study, a manufacturing plant reduced accidents by 40% after implementing our system. Features include night vision, advanced monitoring for PPEs, work at height and welding activities, including real-time analytics, making it a comprehensive safety solution. Our team of experts ensures the highest quality and reliability, constantly innovating to meet your safety needs. Plus, our dedicated support team is here to assist you 24/7, ensuring that you get the most out of your investment. Join the revolution in safety with Tracker AI's smart PTZ camera system. It's time to take your safety measures to the next level. Visit tracker.live to learn more and get started today. Together, we can create a safer, smarter future for everyone. Welcome to another episode of Hackla Podcast. In today's episode, we are talking about something that can truly mean the difference between life and death. The first 5 minutes after an emergency. Whether it's a cardiac arrest, severe bleeding, a fall, or heat stress, those first few minutes before medical help arrives are often the most critical. Yet, in many workplaces, people panic, freeze, or simply don't know what to do. To help understand this, why first aid training is a real workplace superpower, we are joined today by Mr. Prateek Pal, a freelance first aid instructor with St. John's Ambulance Association, India, and a master trainer at the Indian Red Cross Society. Prateek has trained countless individuals and organizations on how to respond calmly, confidently, and correctly during emergencies. Let's dive into why the first 5 minutes matter and how the right response can save lives. Thank you, Prateek, for joining us today. Thank you. So, as we start, can you please introduce yourself for our audience? First of all, sir, my introduction myself, Prateek Pal, Master Trainer from Indian Red Cross Society and lecturer from St. John Ambulance Association, India. I have almost 15 years of experience in this organization, in this field. And this is because of, you can say, because of my dad. And that is called because of my dad in the sense he has 35 year of experience in this organization.
सो 35 ईयर एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है। और यू कैन से कि हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन या ये फील्ड हमारे अंदर ये बिल्ट है। तो उसके लिए बेसिकली हमारा जो आउटकम है, हमारा जो ट्रेनिंग पर्पस है, वो बड़ा अच्छा है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं ट्रेनिंग पर्पस से रिलेटेड, तो बेस्ट है। Very nice, Pratik. Very nice that you could take time out for today talking to us. यस, So let's start our podcast. श्योर सर। So, first question, like, why are the first 5 minutes after an accident or medical emergency considered so critical? बेसिकली एज पर इंडियन कल्चर, जो हमारे एक बेसिकली फर्स्ट 5 मिनट्स हैं, हम उसको नॉर्मली इमरजेंसी कॉल्स के लिए या फिर कॉल फॉर हेल्प के लिए हम वेस्ट कर देते हैं। और मेनली जो हमारा बेसिकली फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, दैट इज फॉर द विक्टिम। विक्टिम के लिए हम क्या काम कर रहे हैं इन केस ऑफ काइंड ऑफ, अगर आप कहें कि रोड एक्सीडेंट है, तो रोड एक्सीडेंट के अंदर हम फर्स्ट जो हम कॉल कर रहे हैं, लाइक अ कॉल टू द पुलिस, कॉल टू द फायर ब्रिगेड, कॉल टू द एम्बुलेंस। मेन थिंग इज कि हम किस पर्पस से कॉल कर रहे हैं, और इस पर्पस से उस पेशेंट का क्या बेनिफिट हो रहा है। वो बेनिफिट नहीं है, बेसिकली कह सकते हैं कि हम लॉस हो रहा है। और लॉस इन द सेंस कि जो इनिशियल फर्स्ट एड है, वो मुझे विद इन 3 मिनट, विद इन 5 मिनट्स मुझे प्रोवाइड करनी है, और वो किसी भी विक्टिम को प्रोवाइड नहीं कर पाते हम। ठीक है। और इसी जनरली हमारे जो प्रैक्टिस है वो है कि एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल। बस जल्दी से जल्दी हम उसे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर दें। लेकिन ट्रांसपोर्ट करने से हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हम किसी पर्सन को, किसी विक्टिम को कोई भी टाइप की हम फर्स्ट एड, मेडिकल एड, और हम कोई भी इमरजेंसी इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो एक विक्टिम के लिए सेफर साइड रहेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक एम्बुलेंस पे अगर कॉल कर रहे हैं, तो हमारा मिनिमम टाइम है 10 to 15 मिनट्स, और मैक्सिमम कह सकते हैं हम इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंगली हाफ एन आवर में हमें मेडिकल सर्विसेज मिल जाएंगी। Okay. लेकिन मेन थिंग इज, जो हम रॉन्ग टेक्निक्स पे अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल, वो हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, और पेशेंट के लिए एक लॉस है। ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज कि वेट फॉर द एम्बुलेंस। और जब तक बेसिकली आपके पास एम्बुलेंस अराइव नहीं हो रही, आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं आ रही, आप वहां पर फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। और अगर हम एक फर्स्ट एड की डेफिनेशन से ही हम इसे क्लियर करें, तो मेन थिंग इज बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर और शिफ्टिंग टू द हॉस्पिटल, इट्स कॉल्ड फर्स्ट एड। डॉक्टर के आने से पहले। लेकिन ये डॉक्टर के आने से पहले मीन्स एम्बुलेंस के अंदर हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ विद इक्विपमेंट अवेलेबल है, हमारे पास टाइप ऑफ एम्बुलेंस अवेलेबल है। लेकिन हमारी जनरली कॉल क्या रहती है? कॉल फॉर एम्बुलेंस। हम जस्ट कॉल कर रहे हैं। लेकिन टाइप ऑफ एम्बुलेंस की बात करें तो हमें बताना होगा अकॉर्डिंग टू इंजरी, अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट, कि हमें किस टाइप की एम्बुलेंस चाहिए, सो दैट पेशेंट की रिकवरी हो पाए। Okay, Pratik, that makes totally sense. हाँ, मतलब मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ ना, एनकाउंटर एन इमरजेंसी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे को पहले ख्याल आता है पुलिस को कॉल करो या एम्बुलेंस को कॉल करो। वो पुलिस का जो बेसिकली हमारा माइंड सेट है, वो है लाइक एक्सीडेंट से रिलेटेड। लेकिन हमें जो बेसिकली हेल्प करनी है, वो विक्टिम की करनी है अकॉर्डिंग टू मेडिकल हेल्प। और अगर थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा चेंज वर्ड करूं, तो हमारे इसमें 3 वर्ड आते हैं: फर्स्ट एड, मेडिकल एड और डॉक्टर एड। फर्स्ट एड मीन्स एज अ लेमैन, मेडिकल एड मीन्स यू आर अ प्रैक्टिशनर, आप कहीं पैरामेडिकली वर्किंग है समथिंग इन द हॉस्पिटल और एनीवेयर। और डॉक्टर एड मीन्स स्पेशलिस्ट। Okay. ठीक है। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इंजरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एक पेशेंट के लिए। Right, right. लेकिन हम अगर पुलिस को कॉल कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ लीगल एड है। अच्छा, okay, इसमें मेडिकल एड हमारे को सर्विस नहीं मिल रही। सिंपली इज दैट। राइट। तो प्रतीक, जैसे जब हम व्हेन वी ग्रो अप, तो आई थिंक तब ये हमारे अंदर, आई डोंट नो, बुक्स से या वॉचिंग कार्टून, हमारे अंदर ये होता है कि इफ देयर इज अ एक्सीडेंट वी शुड कॉल एम्बुलेंस एंड दैट वुड बी इनफ, राइट। तो इसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं, राइट। सो क्या आप बता सकते हैं कि व्हाई इज दीज अजम्पशंस डेंजरस? एक्चुअली अगर आप ये कहें कि एम्बुलेंस को कॉल करना सिर्फ इनफ रहेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें एक श्योरिटी हो कि आपने अगर एम्बुलेंस को कॉल किया है, तो हमारे को वो सर्विसेज मिलेंगी।
क्योंकि एक हमारा एम्बुलेंस डिपार्टमेंट ऐसा है कि ये 2 साइडेड कॉल है, ये 1 साइडेड कॉल नहीं है। एम्बुलेंस डिपार्टमेंट आपको दोबारा अगेन एक कॉल करेगा, आप उसे रिकन्फर्म करेंगे, सेम आप कंफर्मेशन देंगे, अगेन सारी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उसके बेस पे वो एम्बुलेंसेस आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, आप किसी भी इंसिडेंट के अंदर, किसी भी एक्सीडेंट के अंदर नॉर्मली आप कॉल करें और आपका एक ही वर्ड होगा, सर एक्सीडेंट हो गया, आप पुलिस आ जाएगी। वहां पर ये वर्ड आता है FIR, काइंड ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो वहां पर उन्हें आना पड़ेगा। लेकिन एम्बुलेंस सर्विसेज का ऐसा कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि 70 to 80% हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन प्रैक्टिस है, वो ये है एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल। लेकिन जहां पे आप एम्बुलेंस पे कॉल कर रहे हैं, वहां पर हमें ये भी श्योरिटी हो कि एम्बुलेंस का आप वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडियन कल्चर की बात करें या इंडियन दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, ट्रैफिक इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो एम्बुलेंस आने में सर टाइम लगेगा, एम्बुलेंस आने में अगर टाइम लगेगा तो आपको वेट करना होगा। और हमारी फर्स्ट एड का मतलब ही यही है सर, बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। और अगर आप एम्बुलेंस का वेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसमें पेशेंट का लॉस होगा। और यू कैन से कि जो काइंड ऑफ फर्स्ट एडर वर्क कर रहा है उसका भी 100% लॉस होगा। वो लॉस किस टाइप का है, काइंड ऑफ अगर आप पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन पर्सन की अगर डेथ हो जाए, तो क्या वर्ड आएगा सर, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ। ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपने जो काम किया वो एक पर्सन के सेफर साइड के लिए किया था, लेकिन वो आपके लिए ही गलत वो हो जाएगा इम्पैक्ट। तो प्रतीक एक बात बताइए, मतलब मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन जब हम सड़क पे हैं और एक्सीडेंट हुआ और मैंने कॉल किया, मान लो आई थिंक यूपी में भी एक नंबर है, लाइक हर गवर्नमेंट एक नंबर देती है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, मान लो मैंने कॉल किया, फिर क्या होता है उसके बाद? बेसिकली अगर आप एम्बुलेंस पे कॉल करते हैं तो उसमें एक सिंपल वर्ड रहता है कि आपने कॉल करके आपने इन्फॉर्मेशन दी, काइंड ऑफ की एज पर लोकेशन, और मेन थिंग इज पेशेंट सिचुएशन, कि पेशेंट को किस टाइप की इंजरीज है, किस टाइप के आप उसमें फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब आप वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम एम्बुलेंस आपको सर्विस देंगे। ठीक है, अगर टाइप ऑफ एम्बुलेंस की बात करें, हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सर्विसेज हैं। फर्स्ट इज PTA, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस, सेकंड इज BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, थर्ड इज ALS, एडवांस लाइफ सपोर्ट। ये 3 टाइप ऑफ वेरिएंट एम्बुलेंस के। और अगर मैं जनरल कॉल करता हूँ एज ए सिविलियन, तो उसके अंदर एक वर्ड आता है, सर एक्सीडेंट हुआ, आप एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है और मुझे क्या सर्विसेज चाहिए, वो वेरी करता है। तो यहाँ पर एज अ सिविलियन अगर हम कॉल कर रहे हैं तो एक सिंपल वर्ड आता है सर कि आप एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड हैं तो इट मींस कि आप BLS के लिए कॉल कर रहे हैं, ALS के लिए कॉल कर रहे हैं, और जनरली PTA के लिए कर रहे हैं। तो वो वेरी करता है। एज ए सिविलियन वो मुझसे पूछेंगे कि कंडीशन क्या है, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब पूछेंगे मुझसे। ये थोड़ा सा सर जनरली अवेयरनेस है, थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। काइंड ऑफ PTA मींस कि एक जनरल आप जब पेशेंट कॉन्शियस है, लिफ्टिंग और अनलिफ्टिंग वो इंडिविजुअली खुद कर सकता है। ठीक है, BLS मींस काइंड ऑफ आपके पास कोई सेमी अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस पर्सन है, उस पर्सन के लिए आप कॉल कर रहे हैं। ALS फॉर लाइक अ स्पाइनल इंजरी, लाइक अ हेड इंजरी, लाइक अ सीवियर ब्लीडिंग, मल्टीपल फ्रैक्चर, और यू कैन से कि मल्टीपल इंजरीज, उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं। तो प्रतीक, हाउ डज फर्स्ट एड ट्रेनिंग चेंज द वे पीपल बिहेव ड्यूरिंग इमरजेंसीज? बेसिकली यही चीजें चेंज हो जाएंगी सर, कि आपको अगर ये नॉलेज होगी तो आप अकॉर्डिंग टू इंजरी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, यू विल कॉल फॉर टू द BLS, कॉल फॉर ALS। ये हमारे चेंजेस हो जाएंगे। सेकंड थिंग, एज अ फर्स्ट एडर, हम जब वर्क प्लेस के ऊपर या प्रीमाइसिस के अंदर या फिर एक रोड एक्सीडेंट के अंदर काम करते हैं, तो हमारा एज अ फर्स्ट एडर वर्क थोड़ा सा चेंज हो जाता है। काइंड ऑफ हम मेडिकल टर्म्स में आ जाते हैं, हमारे अंदर कुछ गाइडलाइंस की एक प्रॉब्लम आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली कुछ हमारी जो गाइडलाइंस है, हमें चाहिए पब्लिक एक्सेप्टेंस। जब तक हमें पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम किसी भी काम को आगे फर्दर नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए मेन थिंग है, जो अराउंड में गैदरिंग है उसकी आपको हेल्प भी चाहिए। विदाउट हेल्प, इफ यू आर सिंगल रेस्क्यूअर, यू कैन डू एनीथिंग। आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
आपको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होगी। अगर इन केस अगर इमरजेंसी की बात करें तो आपको एक ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज चाहिए होंगे, लाइक अ हैंकी, लाइक अ क्लोथ, कुछ भी आपको अरेंज करना होगा। आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो टेक्निकल पार्ट आ जाएगा, वो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा कि हम उस चीज को चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है। तो प्रतीक, लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है हमें कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को? बेसिकली सर देखिए, वर्क प्लेस और यू कैन से कि मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट्स के लिए तो ये मैंडेटरी है। लेकिन हमारे पास अगर इंडिया की डेथ रेशियो की बात करें तो 70% अगर ब्रॉड डेथ है तो वो हमारे रेजिडेंस पार्ट पे है। ठीक है, ये वर्क प्लेसेस पे आपको ये डेथ रेशियो नहीं दिखेंगे। और अगर आप ये कहें कि वर्क प्लेस के ऊपर डेथ रेशियो की बात, वो आफ्टर एक्सीडेंट है। हम्म। लेकिन हमारा नॉर्मली ये जो 70% डेथ रेशियो है, वो है रोड एक्सीडेंट प्लस हमारे रेजिडेंस इंसिडेंट, ओके। जिनके अंदर हम किसी को हेल्प के लिए अगर कॉल कर रहे हैं तो वो अननॉलेजेबल पर्सन को कर रहे हैं। नॉर्मली एक लाइक मेरा फ्रेंड है, मेरा कुलीग है, मेरे नेबर्स हैं, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं। अच्छा, ओके। लेकिन इट डजेंट मैटर। लेकिन जिसको आप कॉल कर रहे हैं, वो एटलीस्ट उसके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए। वो मेन मैटर करता ओके। तो हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं इमरजेंसी के, उनको नॉलेज होनी चाहिए। है ऑब्वियसली। ओके, ओके। और यू कैन से कि आज की डेट में अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें या दिल्ली एनसीआर की, आज की डेट में सोसाइटीज हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड्स के पास इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमारे आरडब्ल्यू हैं, एनजीओज हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है कि इमरजेंसी में हमें किस सिस्टम को एक्टिवेट करना है, इमरजेंसी प्लान क्या होना चाहिए हमारा, सो दैट कि हम फॉर द मिनिमम फ्यू मिनट्स, ठीक है, हम उसको प्रिकॉर कर पाए। Okay, okay. So, Pratik, moving forward, what are some common first aid myth or wrong practices that can worsen an emergency instead of helping it? इससे सर ये काइंड ऑफ अगर मिथ्स की बात करें तो एक ही सिनेरियो के ऊपर मैं बेस करूंगा। इन केस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, एक नॉर्मली सडनली कोई पर्सन अगर स्लिप कर जाए, ठीक है, या सडनली कोलैप्स तो नहीं कह सकता हम इसमें, सडनली कोई स्लिप कर जाए, तो आप क्या मानते हैं, आपके अकॉर्डिंगली आप क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे या मतलब क्या हेल्प करेंगे पर्सन की? अगर मान लो मैं बगल से जा रहा हूँ, कोई स्लिप कर गया, तो पहले तो मैं पूछूंगा, भाई आर यू ओके, कि मतलब कितना चोट लगा है आपको। फिर मैं ये तो कोशिश बेसिकली करूंगा। एक काइंड ऑफ की एक कॉल हो गया कि आपने उसके वर्बली हेल्प करी, एक फिजिकली हेल्प आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, फिर मैं उससे पूछूंगा कि मैं उसको पूछूंगा कि मैं उठाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उठाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पर आपकी जो ये रॉन्ग टेक्निक है, ये पेशेंट की इंजरी को इंक्रीज करेगा। राइट। ठीक है, अब ये इंजरी को इंक्रीज क्या करेगा? फ्रैक्चर का बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज इमोबिलाइज दैट पार्ट ऑन द स्पॉट। हम्म। उस पार्ट को हिलने डुलने से रोकना है। हम्म। और आपने जो काम किया है वहीं पर उस पेशेंट को मूवमेंट प्रोवाइड करी है। राइट। आप उस पार्ट को, उस लिम को, चाहे वो अपर लिम हो चाहे हमारे लोअर लिम हो, आप उसकी मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारी टेक्निक जो है ऑलरेडी चेंज हो जाएंगी अगर मैं फर्स्ट एड ट्रेंड हूं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सडनली नॉर्मली इन केस ऑफ सडनली फेंट, अगर कोई फेंट हो जाए, आपका फर्स्ट बेसिक स्टेप क्या रहेगा एज अ जनरल प्रैक्टिस? मतलब अगर फेंट होके गिर गया, सडनली कोलैप्स। आई हैव नो क्लू। मतलब पहले 5 सेकंड तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या, टू बी ऑनेस्ट। सेम काइंड ऑफ यू कैन से कि पैनिक क्रिएशन है, आप पैनिक हो जाओगे। ठीक है, यहां पर वर्ड है कॉमन सेंस। ठीक है, मुझे क्या हेल्प करनी है, दैट इज द मेन थिंग। और हमारे फर्स्ट एड के अंदर सिंपल वर्ड है सर, व्हाट इज डू, व्हाट इज डू नॉट विद टेक्निक। अगर मुझे आता है तो क्या करना है और क्या नहीं करना, वो मुझे टेक्निक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर वो मुझे टेक्निक क्लियर नहीं है, सॉरी सर, ये आपका, अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट एड सर्टिफाइड आप फर्स्ट एडर है, तो ये सर्टिफिकेट आपका वहीं फिनिश्ड हो जाता है। तो ये बेसिकली ये मेरी टेक्निक्स है जो आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर अवेयरनेस, आफ्टर नॉलेज, ये चेंजेस हो जाएंगे। ओके, ओके। तो आप इस सिनेरियो में कुछ बताएंगे, लाइक क्या करना चाहिए एज अ बेसिक थिंग अगर कोई फेंट हो रहा है तो? बेसिकली सर, अगर मैं आपसे ही बात करूं
तो एक सिंपल सा वर्ड, इन केस ऑफ फेंटिंग, आप कॉज ऑफ फेंटिंग क्या मानते हैं? कॉज ऑफ फेंटिंग या मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। अगर अगर बहुत धूप है तो कोई डिहाइड्रेट हो गिर सकता है। यू कैन से कि हीट स्ट्रोक हो सकता है, यू कैन से डिहाइड्रेशन, ठीक है, यू कैन से न्यूट्रिशन वैल्यू का लॉस हो सकता अगर है, आपने खाना नहीं खाया सुबह तो भी फेंट सकते न्यूट्रिशन वैल्यू का पार्ट आ गया। लेकिन सिंपली वर्ड इज दैट इन केस ऑफ अनकॉन्शियसनेस यू हैव टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अगर एक पर्सन अनकॉन्शियस हुआ, आपको अनकॉन्शियसनेस का ट्रीटमेंट करना है। सही बात है। कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस के ऊपर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हम इसे थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स में जाएं, कॉज ऑफ फेंटिंग, कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, वो बीपी लो भी हो सकता है, शुगर लो भी हो सकती है। लेकिन इन चीजों के ऊपर आप तब काम कर सकते हैं जब वो एक पेशेंट कॉन्शियस है। ओके ओके। आफ्टर अनकॉन्शियसनेस यू कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो भी आगे एक पार्ट आएगा कि अगर हम अनकॉन्शियसनेस पे पार्ट पे काम कर रहे हैं तो क्या हमारा बेसिक फर्स्ट स्टेप्स रहने चाहिए, ओके ओके। तो उस पर आगे बात करते हैं। सही बात है। मतलब जब वो अनकॉन्शियस होता है आई कैन नॉट आस्क दैट पर्सन कि भाई तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, राइट? ये तो आपकी बेसिकली आपका माइंडसेट है कि किस वजह से हुआ। हाँ। हाँ, आप उसे क्लियर नहीं कर सकते। और अगर आप क्लियर कर भी लें, अगर मैं एक नॉर्मली बात कहूं कि एक पर्सन डायबिटिक है, शुगर लो हुई, तो क्या आप एक अननोन पर्सन को इंसुलिन या कोई भी ऐसी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं? सॉरी, जब तक बेसिकली पेशेंट कॉन्शियस है तब तक आप वो चीजें कर सकते हैं। आफ्टर अनकॉन्शियसनेस यू कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग। Right. So, Pratik, based on your training experience across industries, like how prepared are Indian workplaces today for medical emergencies? वर्क प्लेसेस की अगर हम बात करें सर, जहां पर भी अगर हम कहें कि हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, तो वहां पर उनका इमरजेंसी इवैक्यूएशन, इमरजेंसी हैंडलिंग और फर्स्ट एड टीम, रेस्क्यू टीम वहां पर अवेलेबल है। और अकॉर्डिंग टू प्रीमाइसिस दे आर प्रॉपरली सेटअप्ड कि मुझे इमरजेंसी में क्या फॉलो करना है। वो उनकी कंपनीज की गाइडलाइंस है, कंपनीज की सिनेरियो के अकॉर्डिंगली क्या वर्क प्लेस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनको इमरजेंसी में क्या चीजों को फॉलो करना है। कुछ कंपनीज में है कि मेडिकल हॉस्पिटल्स या मेडिकल रूम अवेलेबल है, हमें वहां पर अप्रोच करना है। कहीं पर सिस्टम है कि यहाँ पर हमें एम्बुलेंस को नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हॉस्पिटल में कॉल करना है। ये वेरी करता है प्रीमाइसिस टू प्रीमाइसिस। ठीक है। एंड लाइक वर्कप्लेस में कोई फिर सर्टिफिकेशन भी होता होगा कि भाई कंप्लायंस है कि नहीं है? देखिए सर, कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंगली कहें तो फर्स्ट एड मैंडेटरी है, फायर एंड सेफ्टी रेस्क्यू, ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं। बट आई थिंक सो कि मैंडेटरी हैं, लेकिन कुछ कंपनीज सिंपली से कि इसको थोड़ा सा डीपली कंसीडर करती हैं कि ये ट्रेनिंग या ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, और कुछ कंपनी होती है काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है। राइट राइट। और एक और बात प्रतीक, लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें फैक्ट्री चल रही है, जिसमें इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट देन अ आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया या ऑब्वियसली। कोई भी कंपनी नहीं लेते नाम, बट एनी कंपनी जहाँ पे आईटी काम हो रहा है तो वो तो बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो फायर को छोड़ के मतलब अदर देन दैट देयर कैन बी इंसिडेंट्स ऑफ फेंटिंग एंड स्टफ, राइट? उसमें काइंड ऑफ आपका सेम सिनेरियो रहेगा, सडनली कोलैप्स और फेंटिंग। ठीक है, उस ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इनिशियल स्टेप्स की अगर हम बात करें, तो उसमें सिंपली वर्ड यू हैव टू फॉलो DRSABCD। एक हमारा एक फर्स्ट एड का एक फॉर्मूला है, जो एक आप इमरजेंसी में अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली एक पेशेंट का सर्वाइवल चांस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो आई कैन स्टार्ट विद द यस, गो अहेड। D फॉर डेंजर। बेसिकली पेशेंट के नियर बाय को डेंजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने एक प्रीमाइसिस की बात करी, आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और ऐसा कुछ हमारे को हैजर्ड्स नहीं है, तो उसके अंदर नियर बाय को डेंजर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज चेक फॉर रिस्पॉन्स। मुझे एक पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स, इट मीन्स पेशेंट इज अनकॉन्शियस। सिंपली, ठीक है। अगर एक पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको उस
ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है अनकॉन्शियस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज ऑफ अनकॉन्शियस आपको नहीं जानना, आपके लिए मैटर नहीं करता, आप कुछ काइंड ऑफ की कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग, आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। मेन थिंग इज डायग्नोज, किस वजह से हुआ ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको डायग्नोज क्लियर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेन थिंग इज आपके पास जो डायग्नोज है वो है चेक फॉर रिस्पॉन्स। इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स you have to go further, send for help, means call for to the emergency help, means call to the ambulance. Next thing is airway open, breathing check, और last thing is C for CPR, जो हमारा एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, हमें फॉलो करनी चाहिए। और ये बेसिकली जो आपका स्टार्टिंग में एक वर्ड था, स्टार्टिंग 5 मिनट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीपीआर। हमें जो बेसिकली सीपीआर स्टार्ट करना है वो विद इन फ्यू मिनट्स स्टार्ट करना है आफ्टर दिस डायग्नोज, सिंपल। ये काइंड ऑफ कि आप एबीसी की जो हमने बात करी, एयरवे ओपन, ब्रीदिंग चेक और सी फॉर चेस्ट कंप्रेशन, इसके ऊपर अगर हमारा कोई फर्दर पॉडकास्ट होगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक ये हमारा रहना चाहिए ट्रीटमेंट फॉर अनकॉन्शियसनेस। तो एक दो सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज आई एम वॉकिंग ऑन द रोड और मेरे सामने कोई देयर इज समवन वॉकिंग और कोई कार हिट करती है उसको, तो नाउ दैट पर्सन विल फॉल डाउन, उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड? आप इसे सर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ब्लड का कलर क्या है सर? ब्लड का कलर रेड। रेड के फॉर्मूले से ही मुझे उसको स्टॉप करना है। आर टू द रेस्ट मीन्स रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट, ई फॉर एलिवेट और डी फॉर डायरेक्ट प्रेशर। हमारा मेनली जो पार्ट रहता है अकॉर्डिंग टू कट, अगर माइनर कट है मुझे एक डायरेक्ट प्रेशर से अप्लाई करना है और मुझे उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है सिंपली, ठीक है। जो अवेलेबल सोर्सेज है, लाइक अगर हमें एक हैंकी है, क्लोथ कोई भी है, टी शर्ट है, शर्ट है, कोई भी चीजें है, मुझे मेन थिंग इज प्रायोरिटी टू सेव स्टॉप द ब्लीडिंग, सिंपली, ठीक है। वो किस ऑप्शन से, किस सोर्सेज से कर पाऊंगा, दैट इज चेंजेस। ये चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकता है, रोड एक्सीडेंट है, प्रीमाइसिस है, दैट कैन बी चेंज। हाँ, मतलब कभी लाइक मूवीज में भी दिखाते हैं वो हैंकी को ऐसे बांध देते हैं कस के ऐसे करके। वो बेसिकली आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई जो करना है किसी भी चीज से, आपको एक डायरेक्ट अप्लाई करना है प्रेशर सिंपली, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू कट साइजेस। अगर माइनर कट है, अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं थंब से स्टॉप कर सकता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कट है, पाम से कर सकता हूँ, उससे बड़ा कट है पूरे हाथ से कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन द कट। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए स्टॉप द ब्लीडिंग। स्टॉप द ब्लीडिंग इन केस ऑफ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। हाँ, इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। सीवियर ब्लीडिंग, माइनर ब्लीडिंग के अंदर चांसेस नहीं है सर कि ब्लड लॉस के ज्यादा चांसेस हैं। वो काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग के केस की हमने बात करी, तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट शॉक में मूव हो सकता है। अदरवाइज अगर सीवियर ब्लीडिंग है तो 70 to 80% चांसेस ये रहेंगे पेशेंट इज इन अनकॉन्शियसनेस। तो उसके अंदर बेसिकली सारी चीजें मुझे अप्लाई करनी है एज अ फर्स्ट एडर, और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो सीवियर ब्लीडिंग में हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो, मान लो एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें इक्विपमेंट्स चल रहे हैं एंड मल्टीपल पीपल आर वर्किंग। सपोज एक बंदा फेंट कर जाता है वहाँ पे, तो जो उसके और कलीग्स हैं, नाउ व्हाट शुड बी देयर प्लान ऑफ एक्शन? बेसिकली अगर इफ दे आर अ ट्रेन्ड फर्स्ट एडर तो उनको ऑब्वियसली नॉलेज होगी उन्हें किस स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक पब्लिक के लिए, एक सिविलियंस के थ्रू अगर मैं बात करें कि उनको ये नॉलेज मिले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेशेंट के हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेग रेस करनी है जितना हमारे लिए पॉसिबल है, सो दैट जो हमारा एक वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, उनकी जो वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो कम हुई है उसको हम फुलफिल कर दें। सेकेंड थिंग, नेक, चेस्ट और वेस्ट, इन चीजों को हम लूज कर दें।
जैसे कि कॉलर का बटन हमारा बंद है, बेल्ट है, कोई भी ऐसी चीजें इन्हें लूज कर दें। और लास्ट थिंग इज कि हम इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। इट मींस कॉल टू द एम्बुलेंस। बाकी स्टेप्स जो है हमारे, वो एज अ फर्स्ट एडर वो हमें फॉलो करने होंगे। और मोस्टली यही रहता है कि जो हमारी जनरल अवेयरनेस है या जनरल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, तो उसमें एक ही वर्ड आता है सर, ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, डू नॉट ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस। अगर पेशेंट एक अनकॉन्शियस है, उसे आप ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छा। उसे एम्बुलेंस के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, खुद अपनी गाड़ी में डाल के नहीं लेके जाएंगे बेसिकली आप। दैट इज टोटली टिपिकल, और यू कैन से कि हार्मफुल टू द विक्टिम। ओके ओके। क्योंकि मूवी में हमें दिखाते हैं ना कि भाई गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ, गाड़ी में डालो, ले जाओ। वो ये हमारा इंडियन प्रैक्टिस है, ये कल्चर है हमारा। लेकिन इस कल्चर को सर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और इसमें बेसिकली क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मैं कुछ भी एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। और जो हमारे फर्स्ट एड का जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, गोल्डन 10 मिनट्स है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट कर देते हैं। और हमारा फर्स्ट एड का मीनिंग ही यही है सर, ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट। उसी जगह पे आप ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप ट्रीटमेंट कहीं और लेकर जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूंगा। यहाँ पर सर एक 3 टाइप ऑफ चेन है, जिसको एक एज अ सिविलियन, एज अ पर्सन मुझे हर किसी को कंप्लीट करनी चाहिए। फर्स्ट इज फर्स्ट एड, सेकंड इज मेडिकल एड, थर्ड इज डॉक्टर एड। फर्स्ट एड मीन्स एज अ लेमैन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल एड मीन्स एम्बुलेंस सर्विसेज, डॉक्टर एड मीन्स स्पेशलिस्ट। इन केस ऑफ हेड इंजरी, अगर आप क्या मानते हैं सर, कौन सा डॉक्टर चाहिए हेड इंजरी? इन केस ऑफ हेड इंजरी? आई डोंट नो, स्कल का जो डॉक्टर होगा। स्कल का जो डॉक्टर होगा, इट्स ओके। इन केस ऑफ हार्ट अटैक कौन सा डॉक्टर चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, यहां पर वर्ड आया मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए, यहाँ मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। जैसे मैंने एम्बुलेंस में एक पार्ट वेरिएंट आपको चेंज कर दिया कि मेरे पास पीटी ऑप्शन है, बीएलएस है, एएलएस है। यहाँ पर डॉक्टर के भी ऑप्शन है सर हमारे पास, मतलब स्पेशलिस्ट हैं। अगर हेड इंजरी है और स्पाइनल इंजरी है, तो मुझे न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट अटैक से रिलेटेड। तो हर इंजरी से रिलेटेड एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। अगर एक मैं जनरल डॉक्टर में जाऊंगा या नियर बाय किसी हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करूंगा, वहां पर हमें मेडिकल एड मिलेगी, लेकिन डॉक्टर एड पॉसिबल नहीं। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो प्रतीक, मेरे को 2 क्वेश्चन और पूछना है। एक क्वेश्चन यस ये पूछना है कि जो हमारी फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं? बेसिक अगर आइटम्स की हम अगर बात कर रहे हैं, तो बेसिक कुछ आपका ड्रेसिंग मटेरियल होना जरूरी है। और कुछ हमारा आईज इंजरी से रिलेटेड, लाइक बेसिक आईज वॉश है, ठीक है, आई वॉश आते हैं वहां पर हमारे पास अवेलेबल है। और मेन थिंग इज, इन केस ऑफ स्पेन एंड स्ट्रेन, अगर गलती से मोच आ जाए, कुछ मसल इंजरीज हों, तो वहां पर हमारा आइस पैक होना बड़ा जरूरी है। ओके ओके। ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर हम मेडिसिन से रिलेटेड बात करें, एज ऑफ अ फर्स्ट एडर, एज ऑफ अ ट्रेनर अगर हम बात करें, तो आप किसी भी अननोन पर्सन को, ठीक है, यू कैन नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। आप किसी भी टाइप की मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते। एलर्जिक हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। एलर्जिक हो सकते हैं, पेशेंट को सूट करे या ना करे, दैट इज मैटर। और लास्टली प्रतीक, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, where does India stand right now compared to US और UK, जहाँ पे, और what do you think about it? बेसिकली सर, अगर हम आउट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री से अगर रिलेट करें इसे, तो मेन थिंग इज हमारी एक जो जनरल प्रैक्टिस है, वो हमारी बड़ा मिनिमाइज है। बहुत कम लेवल पे हम एक काम कर पा रहे हैं। हम किसी भी इमरजेंसी के अंदर हमारा जो जनरल प्रैक्टिस है, अच्छा एक नॉर्मली मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ अगर, तो ये आपसे ही क्वेश्चन है कि हमारा जो ट्रेनिंग पर्पस है फर्स्ट एड से रिलेटेड, वो कहाँ पे कंडक्ट होती है हमारी? मतलब
ट्रेनिंग कहाँ होती है? हाँ, कहाँ किस पर्पज से करते हैं? पर्पस से मतलब मेरे हिसाब से तो माय आप अंडरस्टैंडिंग इसी इज इसी इसी वर्ड में आप डाउट में हो। पर्पस इन द सेंस, जो कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग होती है वो हाँ किसी पर्पस से होती है सर। हाँ, तो वो पर्पस क्या है? मैंने एक ट्रेनिंग करी थी जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखा रहे थे, सो आई ऑपरेटेड दैट। तो पर्पस तो मेरे को यही लगा कि अगर आग लगती है और मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो मैं वो फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर सकूँ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करूंगा। किस पर्पस से कंपनी में ट्रेनिंग हो रही है? कंपनी का पर्पस क्या है ट्रेनिंग कंडक्ट करने का? अ, ताकि सब लोग सेफ रहें। कंप्लाइंसेस। Compliance- ये फायर इंसिडेंट सिर्फ वर्क प्लेस पे होते हैं? नहीं, हर जगह कहीं भी हो सकते हैं। कहीं भी हो सकते हैं। तो ये सभी के लिए मैंडेटरी थोड़ी हुआ। तो भाई यही यही डिफरेंस है बेसिकली। अगर आप ये कह रहे हो कि अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंगली है, हमारे इंडिया के अकॉर्डिंगली वहां का अगर अगर स्कूल क्लासेस की अगर हम बात करें, स्कूल स्टूडेंट की बात करें, ही और शी इज ट्रेन्ड इन सीपीआर। ठीक है। वहां पर एक 6th स्टैंडर्ड का अगर स्टूडेंट है, वो फुली ट्रेंड है सीपीआर प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पर अगर वर्क प्लेसेस की बात करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है, उनकी जो एक सिटिंग प्लेस है, वर्क प्लेस है, वो वेरी करता है। ठीक है। कुछ पर्सन अनएजुकेटेड है, कुछ एजुकेटेड है। हो सकता है दोनों के ट्रीटमेंट में वेरिएशंस आए। और मेन थिंग इज, जो हमारे रेजिडेंस पे, जो हमारी फैमिली पर्सन है, हमारे नेबर्स हैं, उन तक ये नॉलेज थोड़ी पहुंच रही है सर। ओके। वो कंपनीज के लिए कंप्लाइंसेस है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेन थिंग इज, अच्छा इसमें लास्ट एक थिंग अगर मैं क्लियर करूं, 70% अगर डेथ रेशियो है, वो है ब्रॉड डेथ। ब्रॉड डेथ मीन्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ओके। ठीक है। ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वाले जो केसेस है, वो प्रीमाइसिस के थोड़ी है सर, नहीं, वो तो रास्ते के हैं। रेजिडेंस के हैं। अच्छा, रेजिडेंस के हैं। जब एक इमरजेंसी के अंदर किसी फैमिली में कोई इंसिडेंट हो, कोई सडनली कोलैप्स कर दिया, एक सिंपल स्टेप है, ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल। राइट। ठीक है। लेकिन जिस पर्सन ने अगर ट्रेनिंग कंडक्ट करी है, जिसने ट्रेनिंग अटेंड करी, जो ट्रेंड है, वो कहाँ पर अवेलेबल है? ऑन द स्पॉट। वो कंपनी में अवेलेबल है। वो तो बेसिकली सर एम्प्लॉई है ना। तो एम्प्लॉय भी तो घर पे रहेगा ना, सोसाइटी में रहेगा। लेकिन 70 to 80% ये विदाउट प्रेजेंस होते हैं ना सर। विदाउट प्रेजेंस? मतलब बेसिकली वो एम्प्लॉय वहां पर अगर प्रेजेंस होता तो ये केसेस थोड़े होते। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो वो सुबह 9 से 5 के बीच में होते हैं? ऑब्वियसली। अब तो सैटरडे वर्किंग है, संडे वर्किंग है सर। ओके ओके तो ओके। बेसिकली ये जो 70% डेथ रेशियो है, अगर एक अगर वर्क प्लेसेस की बात करें, प्रेमाइसिस की बात करें, वहां पर प्रॉपरली हमारे पास मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल रूम्स हैं, हमारा हॉस्पिटल्स में टाई अप है, विद इन फ्यू मिनट्स हमें ये सर्विसेज मिल जाएंगी। लेकिन मेन थिंग इज, जिनके पास नॉलेज नहीं है, उन वो कौन किस स्टेप को फॉलो कर रहे ओके ओके। हाँ, आई थिंक वर्क प्लेस तो वैसे भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है ना उन सर्विसेज से। हैं। यस। लेकिन सोसाइटीज में चांस। वो मैंडेटरी होना चाहिए। ओके ओके ओके। तो इसके लिए लाइक सोसाइटीज में वो कंडक्ट कराने चाहिए, आई थिंक कराते भी होंगी बहुत सारी सोसाइटीज। कुछ RW है सर, कराती है। अच्छा अच्छा, बट इतना कॉमन नहीं है अभी। कॉमन नहीं है। ओके, स्टिल वर्क नीड्स टू बी डन। ठीक है ठीक है ठीक है। So, thank you, Pratik, for today and for sharing such powerful and practical insights. Today's conversation makes one thing very clear. First aid isn't just a skill for medical professionals, it's a life saving responsibility for everyone. The first 5 minutes after an emergency don't wait for ambulances, policies, or permission. They depend on the people who are already there. To our listeners, if this podcast makes you rethink emergency preparedness at your workplace, that's a great place to start. Awareness leads to training, and training leads to saving lives. Thank you for tuning in to Hackla Podcast. If you found value in this episode, do share it with your network. And because safety truly begins with preparedness. Until next time, stay safe. Thank you and have a nice day. Bye bye.